A very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of Sacred Hearts of subject economics. Dear students, in the previous lecture of the chapter 3, that is the agriculture, industry and trade 1950 to 1990, we have discussed about the phases of green revolution, limitations of green revolution, benefits of green revolution, and we have discussed about the agricultural subsidies, that is virtue or vice. Dear students, today in our 13th lecture, we are going to discuss another important part of the chapter, that is about industry. So, dear student, let us start with a small introduction that why the industry was given a due significance. So, see over here, subs- sustained GDP growth is possible only when its epicenter lies in the industrial sector. That means the balanced growth can only when the growth center of the growth and the epicenter of the growth remains within the industrial sector. Now, see why industries are important, because industries used to provide employment opportunities, and these employment opportunities are comparatively stable in industrial sectors in comparison to the agricultural sector. And hence, after independence, the planners accorded a high priority to the industrial development. इसलिए इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारी कंट्री ने प्लान आउट करना स्टार्ट किया, तो जो हमारी कंट्री के प्लानर्स थे उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस दी. नाउ see the topic in this, factors necessitating, that is the direct participation of the state in industrial development. अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस था उसमें हम लोगों ने एक एसेंशियल और डायरेक्ट रोल दिया किसको, गवर्नमेंट को. और व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट कि हमने स्टेट को इतना इम्पोर्टेंट रोल क्यों दिया, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन क्यों दिया. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ द lack of capital. So, dear students, if we talk about the people in our country or the industrialists in our country after the independence, then there was hardly any industrialists just like the Tata and Birla. And except in those big houses, there were no industrialists or the big industrialists in the country. So, the industrial development in India is needed with a big push. ज़्यादा बिग पुश की रिक्वायरमेंट थी. प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी उनकी नहीं थी, टाटा और बिरला को छोड़ दें तो दैट इज़ वाई द huge requirement of the capital was a very far beyond the concept of for the private industrial houses, and that is why it become essential for the state to achieve industrial growth through the public sector undertakings. प्राइवेट सेक्टर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, कुछ एक आध ही थे. इसलिए हम इस पे जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर पर रिलाई नहीं कर सकते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को खुद अपने हैंड्स में लिया. Second, low inducement to invest. Dear students, if we talk about the low inducement to invest means कि जो motivation था वो private entrepreneurs को नहीं, जो few limited private industrial houses थे उनको भी कोई inducement या फिर motivation नहीं था investment करने का. Why? Because the size of the market was very limited. अगर हम अपनी country की बात करें तो उस टाइम पे हमारी country का जो market size था वो बहुत क्या था, लिमिटेड था. एंड वाई इट वॉज लिमिटेड, बिकॉज देयर वॉज वेरी लो लेवल ऑफ डिमांड. डिमांड बहुत कम थी इकोनॉमी में, और डिमांड कम क्यों थी, क्योंकि इनकम का जो जनरेशन था वो कम था. दैट मीन्स इट वॉज अ कंटिन्यूस साइकिल, एक चेन थी जिस एक एलिमेंट की वजह से दूसरा एलिमेंट होता, दूसरे की वजह से तीसरा, एंड सो ऑन, ये अपने आप में कंटिन्यू करती थी. एंड फॉर ब्रेकिंग दिस विशियस सर्कल, और इस पूरे सर्कल को, इस चेन को ब्रेकआउट करने के लिए गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करना पड़ा थ्रू द ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. Third, that is the growth with social justice. If we left out the stuff with the hands of in the hands of the private entrepreneurs, then but obvious the motive will be the profit maximization. And it was realized by the government that one of the most important objective at that time was the social justice, and it could be achieved only when government will have the direct participation and interference in the industrialization process. So these are the three important points which are showing why state participated directly in the process of industrialization. Now, IPR 1956.
Industrial Policy Resolution 1956. What was that? A declaration on the leading role of the state. एक ऐसा रिजोल्यूशन जो कि स्टेट के रोल को, एक लीडिंग रोल को डिक्लेयर करता है. ठीक है, इसमें देखिए बेटा, इफ़ यू टॉक अबाउट द IPR 1956, सो इन दिस अ वेरी ड्यू इम्पोर्टेंस वाज गिवन टू द गवर्नमेंट सेक्टर इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. और इस IPR को हमने ऐसा क्यों कहा कि स्टेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, तो उसके 3 एलिमेंट्स हैं. The very first element is the threefold classification of industries. That means all the industries were divided into 3 types. The very first is the public sector enterprises, or the industries which were completely regulated by the government officials, is known as the public sector enterprises. This includes, इसमें क्या क्या include होता है? Atomic energy, defense and railways. Thereafter प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, इनको हमने बोला कलेक्टिव एंटरप्राइज. इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों का क्या था? ओनरशिप थी. बट इन दिस द मेजर रोल वॉज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. देखिए, हाउएवर द प्राइवेट सेक्टर वॉज टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल. ठीक है, if I make a correction, that will not a significant role, it will be a secondary role. And the third one, that is the private sector, जिनको फर्स्ट 2 कैटेगरी में इन्वॉल्व नहीं किया, उसको लेफ्ट आउट किया. किसके लिए? थर्ड कैटेगरी के लिए. तो 3-fold क्लासिफिकेशन में इंडस्ट्रीज 3 टाइप्स की थी. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो कम्प्लीटली गवर्नमेंट कंट्रोल थी. उसके बाद मिक्स, जिसमें कि प्राइवेट पब्लिक दोनों का पार्टिसिपेशन था, लेकिन पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल मिला था. एंड द थर्ड वन, दैट इज़ द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस. नाउ द सेकेंड पॉइंट ऑफ द IPR, दैट इज़ द इंडस्ट्रियल कंसेशंस. If we talk about the industrial concessions, then these are the different benefits that are given to the industrialists so that they will be motivated to set up their industry in the backward regions or in the regions which are very deprived in the concern of the growth and development. तो गवर्नमेंट ने क्या किया? इनको ये कंसेशन देके इनको ग्रीड किया कि आप इन एरियाज़ में आके, बैकवर्ड एरियाज़ में आके अपनी इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करिए. और इन कंसेशंस में क्या क्या इंक्लूड था? दीज कंसेशंस इंक्लूड टैक्स हॉलीडे. जो टैक्स में था वो आपको हॉलीडे मिला. दैट मीन्स कि यू आर नॉट नीडेड टू पे एनी अमाउंट ऑफ टैक्स. एंड सब्सिडाइज पावर सप्लाई, जो आपको पावर सप्लाई मिलेगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के लिए पावर सप्लाई की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो जो आपको पावर सप्लाई मिलेगी वो सब्सिडाइज रेट पे मिलेगी. थर्ड एलिमेंट देखिए, दैट इज़ द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. इफ़ यू टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, देन इन द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग को कंपलसरी करा. The basic idea of licensing policy was to encourage industries in the backward region. अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या था लाइसेंसिंग का? ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोग दैट मीन्स गवर्नमेंट बैकवर्ड एरियाज़ में भी क्या कर सके, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको स्टैब्लिश करवा सके. दिस वॉज द मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द लाइसेंसिंग. इवन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी द लाइसेंस वॉज रिक्वायर्ड. ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, बट आपको एक्सपेंशन, प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. इफ़ यू टॉक अबाउट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में 2 फेसेस रहे, 2 पार्ट हमारे रहे. पहला रहा ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जिसका मेन मोटिव था टू जनरेट द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी. एंड द सेकेंड पार्ट, दैट इज़ द ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसका ऑब्जेक्टिव था टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विद द सोशल जस्टिस. Now, which industry can be stated as a small scale industry? See, a small scale industry can be defined as a unit having fixed investment of less than 10 crore rupees. कोई भी ऐसी इंडस्ट्री, कोई भी ऐसी कंसर्न जिसकी फिक्स कैपिटल की अमाउंट 10 करोड़ रुपीज़ से कम हो, एंड द टर्नओवर मस्ट बी लेस देन ₹50 करोड़, और टर्नओवर क्या होना चाहिए? 50 करोड़ से कम होना चाहिए. दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. नाउ सी ए नोट ओवर हेयर, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को एक ड्यू सिग्निफिकेंस मिला, एक इम्पॉर्टेंस मिली. कहाँ से? बाय द कार्वे कमेटी इन द 1955 में इस बात को रियलाइज़ किया कार्वे कमेटी ने कि रूरल इंडिया के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकती हैं. नाउ वाई इट इज स्टेटेड, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की. द फर्स्ट वन, लेबर इंटेंसिव एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. इफ़ वी टॉक अबाउट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, देन दीज इंडस्ट्रीज आर द लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज which used to employ more and more amount of labor, and when it will be labor intensive, automatically it will be employment generating as well.
Second, it shows locational flexibility. If we talk about the large scale industries, then they are having the limitation कि उनका establishment नियर बाय पोर्ट होगा या फिर जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है वहीं पे हो सकता है. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए ऐसा कोई भी लिमिटेशन नहीं है. दे कैन बी ईजिली स्टैब्लिश एट एनी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, एंड देयर फोर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आर इक्वालिटी ओरिएंटेड. और जिससे कि हम ये बोल सकते हैं कि जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, इक्वालिटी ओरिएंटेड होती हैं, एंड कंट्रीब्यूटेड और यूज टू कंट्रीब्यूट इन द बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ. और क्या करती हैं, बैलेंस रीजनल ग्रोथ को प्रमोट करती हैं. थर्ड एंड लास्ट देखिए बेटा इसमें, दैट इज़ द SSI नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट. अगर अब हम लोग बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिजन में बहुत कम होता है. Accordingly, it does not lead to concentration of economic power in certain hands. हर कोई अपने थोड़ा बहुत अमाउंट को इन्वेस्ट करके अपना जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसे रन कर सकता है. तो इसका मतलब ये कि इक्वली जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो होगा. बट अगर हम लोग बात करें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की, तो कुछ ही लोग उन इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश कर सकते हैं, तो प्रॉफिट भी उनके हैंड्स तक कन्फाइंड रहता है. रादर इट प्रमोट्स द इक्वालिटी अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. और इसको कोई भी स्टैब्लिश कर सकता है, विद द स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है. इसलिए ये इक्वालिटी को भी क्या करती है, प्रमोट करती है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे बेटा. टुडे व्हाट वी हैव डिस्कस, वी हैव डिस्कस द industry part of the chapter, in which we have discussed the reasons behind the state participation in the industrialization. We have discussed about the IPR 1956. We have discussed about the small scale industry and its importance. This is all about today. God bless you all.